So hello all, I welcome you all in our next video of Prayag Public School, and this video is for class 9th, right? And today we are going to study a poem which is a legend of Northland, right? So it is a poem from Beehive. So I will be explaining what this poem is all about, right? So, if you remember in our last video, we have completed one chapter, that is lesson 5, lesson 4, truly beautiful mind, right? Where we have completed that chapter, and I also gave you homework to write down or to complete the question answer of that particular chapter in your classwork copy, right? So, today we will be starting with this poem. So, let's start with the poem, class. So, poem A Legend of the Northland Beehive. It is a poem from Beehive for class 9th. So, let's start, class. A Legend of the Northland, right? So, let's understand what is the meaning, what is the real meaning of this particular name of the chapter. So, legend over here means story, right? And Northland means areas around North Pole. So you might have studied in your geography or SST, right? So all the areas that come nearby the North Pole, right? They are known as Northland, right? For example, Greenland, then Alaska, then many more are there, which come or which lie nearby the North Pole, right? So this poem narrates the legend of an old lady who angered Saint Peter because of her greed, right? So this is the poem who is telling about a legend about who is telling a story. Legend means story about an old lady, right? एक बूढ़ी औरत के बारे में ये पोयम है, जो कि एक तरीके से स्टोरी बता रही है. हु एंगर्ड मीन्स जिसने गुस्सा दिलाया था किसको? सेंट पीटर को, बिकॉज ऑफ हर ग्रीड. किसकी वजह से? क्योंकि वो एक लालची लेडी थी, बहुत लालची औरत थी, और उसकी लालच की वजह से किसको गुस्सा आ गया था? सेंट पीटर को, ठीक है. सो दिस स्टोरी इज ऑल अबाउट दिस लेडी एंड सेंट पीटर, राइट? सो लेट स्टडी फर्दर एंड लेट सी what is the poem all about. Away, away in the Northland, where the hours of the day are few and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through, right? So first of all, I'm going to read the stanza, or you can say particular paragraph, and then I will be explaining what the stanza really means, right? So away, away in the Northland, where the hours of the day are few and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through, right? So away, away in the Northland, now the poem is saying कि अवे अवे इन द नॉर्थलैंड मीन्स जो ये नॉर्थलैंड के बारे में बात करें, दूर दूर तक नॉर्थलैंड, मतलब जैसे अभी मैंने बताया कि नॉर्थलैंड क्या होता है, वो सारे एरियाज जो नॉर्थ पोल के आसपास आते हैं. तो ये बता रहा है कि दूर दूर तक नॉर्थलैंड में, ठीक है, वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू. अब क्योंकि वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल, अगर आप नॉर्थ पोल या साउथ पोल की बात करें, क्योंकि नॉर्थलैंड बेसिकली हम बात कर रहे हैं नॉर्थ पोल की, बट अगर हम दोनों की बात करें, एक्सट्रीम अपवर्ड एंड एक्सट्रीम डाउनवर्ड, क्योंकि एक्सट्रीम अपवर्ड क्या होता है? नॉर्थ पोल है. एक्सट्रीम डाउनवर्ड क्या होता है? साउथ पोल है. तो इन दोनों में जो सन की रेज होती है वो स्लैंट पड़ती है. स्लैंट मतलब तिरछी पड़ती है, ठीक है. तो इस वजह से जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में क्या होता है, यहाँ जो दिन होते हैं बहुत छोटे होते हैं. वाई? बिकॉज दिस पार्ट ऑफ द अर्थ गेट अ स्लैंटिंग रेस ऑफ द सन, राइट? सो दैट इज़ वाई यहाँ पे दिन बहुत छोटे होते हैं. तो दैट इज़ वाई द पोएट हैज़ मैंशन वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू. इसका मतलब है वहाँ दिन बहुत छोटे होते हैं. वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर. और विंटर में यहाँ रातें क्या होती हैं? लंबी होती हैं, ठीक है. जैसे कि आप हमारे यहाँ देख सकते हो नॉर्थ इंडिया में क्या होता है कि जैसे विंटर शुरू होता है, विंटर सीजन शुरू होता है, यहाँ नाइट क्या होती हैं? बड़ी होने लगती हैं, और दिन क्या होते हैं? छोटे होने लगते हैं, राइट? बिकॉज इट हैपन्स बिकॉज ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ द what अर्थ, राइट? दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू. दे मीन्स ओवर हेयर मीन्स पीपल. तो वहाँ के लोगों को पोएट बोल रहा है कि वो लोग जो वहाँ पे रह रहे हैं नॉर्थलैंड एरिया में, वो उनको सोने में बहुत मुश्किल आती है विंटर के टाइम में, क्योंकि इतनी ठंड होती है कि वो सही से सो नहीं पाते हैं, राइट?
So away in the northland where the hours of the day are few and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through, right? तो दूर दूर तक नॉर्थलैंड में क्या हो रहा है, ये दूर दूर तक नॉर्थलैंड की बात कर रहे हैं, मतलब जहाँ जहाँ तक नॉर्थलैंड फैला हुआ है दिख रहा है। तो पोएट कहता है कि ये इस नॉर्थलैंड एरिया में क्या होता है कि दिन बहुत छोटे होते हैं, रातें बहुत लंबी होती हैं, खासकर विंटर टाइम में, और वहाँ के जो लोग हैं वो सही से सो भी नहीं पाते हैं। ठीक है, अगर मैं विंटर की बात करूँ या विंटर सीजन की बात करूँ, where they harness the swift reindeer to the sledges when it snows, and the children look like bear's cubs in their funny furry clothes, right? Where they harness का मतलब है टू टाई, मतलब बांधना, ठीक है। द स्विफ्ट का मतलब है वेरी फास्ट, कोई चीज़ जब बहुत तेज़ जाती है वो उसे क्या कहते हैं, स्विफ्ट, मतलब वो बहुत तेज़ है, स्विफ्ट मीन्स वेरी फास्ट। रेनडियर मीन्स एनिमल। नाउ लेट मी शो यू पिक्चर हाउ रेनडियर लुक्स और लुक लाइक। सो यू कैन सी ओवर हेयर रेनडियर, ये पिक्चर है, और आपने ये देखा होगा कि ये रेनडियर है, ठीक है। और जो यहाँ पे एनिमल आप देख रहे हैं जो आगे हैं, ये आपने देखा होगा, मूवीज़ में भी देखा होगा या पिक्चर में भी देखा होगा या नेट पे इंटरनेट पे आपने देखा होगा कि ऐसे जानवर जो हैं वो स्नोई एरिया में पाए जाते हैं, जहाँ पे ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, मतलब एक मतलब इंसानों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। और ये जो नीचे है वो है स्लेज, जिसे ये स्लेज अभी हमने पढ़ा, सेकंड लाइन में वर्ड मेंशन है। तो ये जो आदमी दिख रहा है आपको रेड कलर के कार्ट पे बैठा हुआ, कार्ट मतलब जो जिसमें हम बैठ के जाते हैं, तो वो होता है स्लेज, राइट। सो लेट प्रोसीड विद द पैराग्राफ। वेयर दे हार्नेस मीन्स टू टाई द स्विफ्ट रेनडियर। अब ये जो स्विफ्ट मतलब जो रेनडियर है, जो एनिमल है, जो अभी मैंने पिक्चर में आपको दिखाया, वो इतने फास्ट हैं, मतलब बहुत तेज़ से भाग रहे हैं मतलब कि बहुत तेज़ से वो स्नो एरिया में वो उस स्नो पे बहुत तेज़ी से दौड़ रहे हैं या दौड़ते हैं। और उनसे बंधा हुआ क्या है, बंधा हुआ एक स्लेज है। स्लेजेस मीन्स कार्ट, ठीक है। वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेनडियर टू द स्लेजेस मतलब किससे बांध के रखे हैं इस रेनडियर एनिमल्स को, कार्ट से। स्लेजेस मीन्स कार्ट, जिसमें बैठ के इंसान एक जगह से दूसरी जगह जाता है। व्हेन इट स्नोज, और कब ऐसा करते हैं, कब ये रेनडियर की हेल्प लेते हैं लोग आने जाने के लिए, जब बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है या बर्फ़ पड़ती है। एंड द चिल्ड्रेन लुक लाइक बियर कप्स मीन्स बेबी, और जो वहाँ के बच्चे हैं वो किसकी तरह दिख रहे हैं, मतलब भालू के बच्चों की तरह या बच्चों की तरह। क्यों? इन देयर फरी क्लोथ्स, क्योंकि उन्होंने जो क्लोथ्स पहना है, क्योंकि आप जानते हो हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, फरी क्लोथ्स पहनते हैं। फरी मतलब जिसमें जो हेयरी क्लोथ्स होते हैं, जिसमें बाल वाल निकले रहते हैं, ठीक है। तो वैसे पहन के जो जैकेट होता है या उस तरीके की चीज़ें हम पहनते हैं, तो हमें हम दूसरे को क्या लगता है, या वहाँ के लोगों को, दूसरे बच्चों को देख के क्या लग रहा है, दैट दे आर लुकिंग एज अ बियर बेबी, राइट। इन देयर फरी क्लोथ्स, फरी मीन्स हैरी, ठीक है। और जो कपड़े वो पहन रखे हैं वो डेफिनेटली वुलन क्लोथ्स हैं, पर वो कैसे हैं, फ़नी लग रहे हैं। और क्योंकि उन्होंने फरी क्लोथ्स पहने, फरी मतलब वुलन जो हेयरी क्लोथ्स होते हैं उनको पहन के रखे हैं, इस वजह से उन कपड़ों में उन बच्चों को देखने से कैसा लग रहा है कि वो एकदम भालू के बच्चों की तरह लग रहे हैं। दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी, आई डोंट बिलीव इट्स ट्रू, and yet you may learn a lesson if I tell the tale to you, right? सो यहाँ पे पोएट कहता है कि दे मतलब पेरेंट्स, जैसे आप यहाँ पे देखे होंगे कि छोटे छोटे बच्चों को उनकी दादी या नानियाँ कहानी सुनाती हैं, तो वैसे यहाँ के दे से एक्सप्रेस कर रहा है पोएट, किसको पॉइंट आउट कर रहा है, वहाँ के पेरेंट्स को। और देम मतलब चिल्ड्रेन को, नीचे मैंने लिखा भी है, देख सकते हो आप, चिल्ड्रेन। और क्यूरियस मीन्स स्ट्रेंज, ठीक है। सो दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी, वो अपने बच्चों को, जो वहाँ के पेरेंट्स हैं नॉर्थलैंड के, वहाँ के जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को क्यूरियस मतलब अनोखी कहानियाँ सुनाते हैं या सुनाते रहते हैं। आई डोंट बिलीव दिस ट्रू, ठीक है। और इस पे पोएट का क्या कहना है कि मुझे नहीं लगता कि ये जो भी पेरेंट्स मतलब जो भी स्टोरी पेरेंट्स अपने बच्चों को बताते हैं उनको मैं सच नहीं मानता। एंड एट यू मे लर्न अ लेसन इफ़ आई टेल द टेल टू यू, टेल मतलब स्टोरी। तो फिर भी यहाँ आगे पोएट अपनी इन 2 लाइनों में कहते हैं कि कोई बात नहीं, पर अगर मैं तुम्हें बताऊँ
वो जो स्टोरी जो इनके पेरेंट्स इन बच्चों को, जो हमारे मतलब यहाँ पे पेरेंट्स जो अपने बच्चों को बताते हैं या दूसरे बच्चों को बताते हैं स्टोरी, अगर वही स्टोरी मैं आपको बताऊँ, मतलब रीडर्स जो हम रीड, जैसे हम रीडर हैं, हम रीड कर रहे हैं तो हम रीडर्स हुए, अब हम इनकी कहानियाँ या ये पोएम पढ़ रहे हैं, तो वहीं पे ये पोएट कहता है कि अगर मैं एज अ एज अ एज अ स्पीकर अगर मैं इस स्टोरी को आप लोगों को बताऊं, तो आपके ऊपर है, विश्वास करिए या ना करिए, बट आप ज़रूर इससे एक लेसन सीख सकते हैं। एज यू नो, बिकॉज एवरीथिंग, एवरी पर्सन, एवरीथिंग, एवरी स्टोरी, एवरीथिंग और एवरी बिट ऑफ थिंग ऑन दिस प्लानट अर्थ टीचर्स सम लेसन। तो हमें हमेशा कुछ ना कुछ हर एक चीज़ या हर एक इंसान सिखाता है। तो वहीं पे ये पोएट भी कह रहा है कि इफ़ आई एम गोइंग टू टेल द स्टोरी, राइट, देन you will be learning something from this particular story or poem, right? So let's proceed further, class. Once, when the good Saint Peter lived in the world below and walked about it, preaching just as he did, you know, right? So once, when the good Saint Peter, now अब पोएट आगे बोल रहे हैं कि एक बार की बात है या बहुत पहले की बात है कि एक सेंट पीटर नाम का एक आदमी रहता था। सेंट मतलब प्रीचर, जो लोगों को धार्मिक चीज़ों के बारे में बताता है, उन्हें हम सेंट कहते हैं, राइट। lived in the world below, lived in the world below means lived in this world, on this planet, right, and walked about it, एंड वॉकड अबाउट इट इसका मतलब वो चारों ओर घूम घूम के प्रीचिंग करते थे। प्रीचिंग मतलब टीचिंग, लोगों को धर्म के बारे में, क्योंकि वो सेंट थे तो वो धर्म के बारे में, कल्चर के बारे में, इन सब के बारे में लोगों को बताते थे, कस्टम, कास्ट, इन सब के बारे में बताते थे। जस्ट एज ही डिड, यू नो, जैसा कि अब हम ये रीडर्स को कहा, पोएट ने रीडर्स को पॉइंट आउट करते हुए कहा है कि आप लोगों में से सभी लोग जानते होंगे कि वो किस तरीके से या क्या काम या कैसे कैसे लोगों को बताया करते थे, राइट। ही केम टू द डोर ऑफ अ कॉटेज इन ट्रैवलिंग अराउंड द अर्थ वेयर अ लिटिल वेमेन वॉज मेकिंग केक्स एंड बेकिंग देम ऑन द हर्थ, राइट। सो ही केम टू द डोर ऑफ अ कॉटेज, कॉटेज मीन्स रूम, ठीक है। तो ऐसे जैसे कि आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, जीसस क्राइस्ट, देन मोहम्मद, देन अदर पीपल, बहुत ऐसे लोग हुए हैं जो कि घूम घूम के लोगों को प्रीच करते थे, मतलब ये कल्चरल या ट्रेडिशन या इन सब से या स्पिरिचुअल टीचिंग देते थे लोगों को। तो वैसे ये सेंट भी कर रहे थे। तो वैसे घूमते 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 पूरी दुनिया का भ्रमण करते 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 ये एक जगह एक ऐसे कॉटेज, मतलब एक ऐसे रूम के पास पहुँचे, एक ऐसे दरवाजे पे पहुँचे, एक ऐसे घर पे पहुँचे, ठीक है। तो वहाँ पे पहुँच के देखते हैं क्या हुआ। ही केम टू द डोर ऑफ अ कॉटेज, कॉटेज मीन्स रूम, एंड ट्रैवलिंग अराउंड द अर्थ, मतलब घूमते 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 ये एक कॉटेज पे आखिरकार जाके पहुँचे। वेयर अ लिटिल वेमेन वॉज मेकिंग केक्स, और जहाँ पे एक औरत, एक छोटी औरत क्या बना रही थी, केक बना रही थी, एंड बेकिंग देम ऑन द हर्थ, राइट। सो और किस पे वो बना रही थी, हर्थ पे। हर्थ मीन्स अ फ्लोर ऑफ फर्नेस। आपको मैं पिक्चर दिखा दूँ तो आप ये देख सकते हो, लेडी, शी इज़ बेकिंग अ केक एंड बिहाइंड इट और अबाव इन द पिक्चर यू कैन सी हाउ द फर्नेस, राइट, इट इज़ अ काइंड ऑफ अ बर्नर और फर्नेस which is getting used in making a cake, right. So ये हर्थ इसी को कहते हैं। and baking them on the hearth, hearth means the floor of furnace, right. and being faint with fasting, for the day was almost alone, he asked her from her store of cakes to give him a single one, right. So and being faint with fasting, fasting मतलब फेंट का मतलब होता है थिन, वीक, जिसको आप कमज़ोर कहते हैं, कमज़ोर हो जाना। जैसे बहुत लोग, कई लोग होते हैं खाना वाना नहीं खाते बहुत दिनों से या भूखे रहते हैं, तो कैसे हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, वैसे ही। एंड बींग फेंट विद फास्टिंग, फास्टिंग मीन्स टू फास्ट, मतलब बहुत दिनों से। क्योंकि अब सेंट पीटर को यहाँ पे किस तरीके से दिखाया गया है, वो प्रीचर थे, घूम घूम के लोगों को नॉलेज देते थे ट्रेडिशन के बारे में, कल्चर के बारे में स्पिरिचुअल या स्पिरिचुअलिटी के बारे में, सब लोगों को कास्ट और बहुत सी चीज़ों के बारे में वो क्या देते थे, लेसन देते थे, पढ़ाते थे, सिखाते थे। तो बहुत से टाइम ऐसे होता था कि उनका सारा टाइम बात करने या लोगों को समझाने में जाता था, और कई दिनों तक या हफ्तों तक वो बिना कुछ खाए रहते थे या रह जाते थे, राइट। सो एंड बीइंग फेंट विद फास्टिंग फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, राइट। और जब उस दिन भी यही हुआ कि उस दिन सारा दिन निकल गया और वो बिना कुछ खाए पिए
बिना कुछ मतलब उन्होंने कुछ भी खाया हुआ नहीं था, खाया पिया नहीं था, और उस दिन भी वो दिन ख़त्म होने के कगार पे था। और इसी बीच वो कहाँ पहुँच गए, एक कॉटेज, मतलब एक रूम के पास। ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम अ सिंगल वन। और फिर जब सेंट ने देखा कि वो औरत क्या है, वो लेडी क्या है, एक मतलब उसके वो एक स्टोर पे हैं जहाँ वो केक बना रही है, तो उससे एक केक मांगते हैं। ठीक है, सिर्फ एक सिंगल केक उसको देने के लिए कहते हैं ताकि वो अपनी भूख मिटा सकें। सो लेट प्रोसीड फर्दर क्लास। So she made a very little cake, but as it baking lay, she looked at it and thought it seemed too large to give away. Right? So baking lay means rectangular metal. So she made a very little cake. अब इसका मतलब है कि यहाँ पे वो केक बना, मतलब जो बना के उसने अपने काउंटर पे या वहाँ अपने शॉप पे रखा हुआ है, उसमें से केक उसने नहीं दिया। ठीक है, उसने क्या किया कि उसने छोटा सा केक बनाना शुरू कर दिया, ताकि जो केक वो बना के रखी है वो क्या था, वो बेचने के लिए रखी है। वो सोची, उसने सोचा कि अगर मैं ये जो मैंने बेचने के लिए रखा हुआ है, अगर मैं वही इसको दे दूँगी खाने के लिए, तो मुझे क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं, मेरा तो लॉस होगा। तो इसलिए उसने क्या किया, इतनी चालाक औरत थी, इतनी ग्रीडी औरत थी, वो लेडी थी, ठीक है, कि उसने क्या किया, छोटा सा केक बनाना शुरू कर देती है उस सेंट के लिए। But as it baking lay, she looked at it and thought it seemed too large to give away. Right? तो वो बनाना शुरू कर देती है। और यहाँ पे बेकिंग ले का मतलब होता है रेक्टेंगुलर मेटल, मतलब जिस पे केक जब बनाते हैं तो उस पर हम बनाने के लिए रख देते हैं ना, ताकि वो क्या हो जाए, वो पक जाए, ठीक, उसमें आँच अच्छी सी लग जाए, जो उसकी फर्नेस की है। तो उसी रेक्टेंगुलर मेटल में छोटा सा केक वो बना के तुरंत के तुरंत पीस, छोटा सा पीस बना के केक का उसी रेक्टेंगुलर मेटल में रख देती ताकि वो पकना शुरू हो जाए। शी लुक्ड एट इट एंड थॉट इट सीम्ड टू लार्ज टू गिव अवे। और इतना कुछ करने के बाद, मतलब जो केक रखी थी उसने वो दिया नहीं, अलग से केक बनाया उसने। और उसके बाद भी जब जैसे उसने रेक्टेंगुलर मेटल में रखा और उसे पकने के लिए फर्नेस पे रखा, तो वो उस पर भी ध्यान देती है। अब जो केक उसने पकने के लिए रख दिया है उस पर भी गौर करती है वो, और फिर उसे लगता है कि नहीं नहीं, ये भी बहुत बड़ा है, मैं इसको भी इस आदमी को, इस सेंट को नहीं दूंगी। राइट? सो यू कैन सी हाउ माइजर और ग्रीडी शी वॉज। राइट? Therefore, she needed another and still a smaller one, but it looked when she turned it over as large as the first had done. Right? Therefore, she needed another. Needed का मतलब होता है क्रश और मिक्स फ्लोर। राइट? तो फ्लोर आप जानते हैं क्या होता है, कि आटा होता है। जैसे हम आटा को गूंथते हैं रोटी बनाने के लिए, तो वैसे उसने वो केक बनाने के लिए भी कोई चीज़ उसके पास रही होगी जिससे भी केक बनता है, वो उसको गूंदना शुरू कर दिया था उसने। अब वो बना बनाया उसका केक था, उसके शॉप पे बना बनाया केक, ऑलरेडी कई सारे केक पड़े हुए थे, बट वो उसको देने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि वो सोच रही थी, या उसके दिमाग में ये था कि ये देने के लिए नहीं रखी हूँ मैं, ये तो बेचने के लिए मैंने रखा है, और मैं इस आदमी को इतना बड़ा केक नहीं दूंगी। देयरफॉर शी नीडेड, यहाँ पे नीडेड का मतलब है क्रश और मिक्स फ्लोर। राइट? अनदर, इसलिए दूसरा एक छोटा पीस केक का बनाने लगी। एंड स्टिल अ स्मॉलर वन, और उसके बाद भी, और वो इतनी ज़्यादा कंजूस थी, इतनी ज़्यादा ग्रीडी थी, लालची थी, कि उसने बहुत छोटी मात्रा में वो केक को बनाना शुरू कर दिया था। उसने बहुत छोटा केक, बहुत छोटे अमाउंट में, और जो भी मटेरियल्स लगते थे केक बनाने में, उनके एकदम छोटे छोटे हिस्से उसने लिए थे एक छोटा सा केक बनाने के लिए। बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न्ड इट ओवर मीन्स टू लुक एट इट। और जब भी वो उसने बना लिया, उसने मतलब केक के पीस में बना लिया, और उसको जैसे ही पकने के लिए भी रख दिया, तो उसने क्या देखा, उसने उस पर नज़र डाली एक बार। टू लुक एट, शी टर्न्ड इट ओवर मीन्स टू लुक एट इट। ठीक है, मतलब एक बार नज़र डालना। बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न्ड इट ओवर एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन। ठीक है, तो उसने भी उसके बाद अब जो छोटा वाला फिर से बना रही थी, वो एक दूसरा जो आटा या जो भी जिस भी मटेरियल से वो केक बनना था, उसको गूंदने के बाद जब वो बहुत छोटी मात्रा में वो केक बनाने के लिए तैयार कर रही थी, या ऑलमोस्ट उसने कर दिया था, सिर्फ पकने के लिए छोड़ दिया था उसने,
तब फिर उसने उस पकते हुए केक पर ध्यान दिया और उसने देखा कि वो पकता हुआ छोटा सा पीस ऑफ केक भी बहुत ज़्यादा लग रहा था उसको, और पहले के जैसे ही उसको ज़्यादा लग रहा था। मतलब पहले जो बनाया वो तो ज़्यादा उसको लग ही रहा था, बट दूसरा जब उसने फिर से गूंद ऊंद के, मतलब वो जो भी चीज़ें उसमें थी, मान लो आटा ही या फ्लोर ही लग रहा था, उसको गूंदने के बाद भी उसको लगा कि नहीं नहीं, ये भी पहले की तरह ही, पहले वाले केक की तरह ही बड़ा सा केक है और ये भी मैं इसको नहीं दूंगी या नहीं दे सकती। Then she took a tiny scrap of dough and rolled it flat and baked it thin as a wafer, and she couldn't part with that, right? Then she took a tiny scrap of dough. Scrap of dough का मतलब है a piece of fermented bread, ठीक है। तो यहाँ पे डो आप ये भी मान सकते हो कि जो हम आटा गूंद लेते हैं ना, तो उसी तरीके से जो भी पीसेस, मतलब जिस भी मटेरियल से वो केक बनाती थी, तो उसी वो मटेरियल ऑलरेडी वहाँ पे पड़ा हुआ था, एज अ रॉ मटेरियल वहाँ पे पड़ा हुआ था, और उसमें से एकदम छोटा सा पीस वो निकालती है, बहुत छोटा सा पीस निकालती है, ठीक है। एंड रोल्ड इट फ्लैट, और उसके बाद जैसे हम रोटी आटा करते हैं, रोल करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसको वो करते थे क्या, उसको बेलन से बेलते हैं, तो वैसे उसने भी उसको एकदम फ्लैट कर दिया, एकदम मतलब एकदम पतला कर दिया, ठीक है। रोल कर करके, मतलब उस पर उसको बेल के क्या कर दिया, उसको एकदम पतला कर दिया। एंड बेक्ड इट थिन एज अ वेफर, ठीक है। और फिर उसको पकाया उसने, बेक्ड मतलब पकाना, उसको पकाया, और किसकी तरह वो हो गया था, उस टाइम तक इतना पतला हो गया था कि वो किसकी तरह दिख रहा था, वेफ़र की तरह। वेफ़र मतलब वेरी थिन एंड लाइट, बहुत पतला और एकदम हल्का। आपने वेफ़र अगर मैं बात करूँ तो वेफ़र आपने कोन खाया है, कोन वाली आइसक्रीम, तो अंदर तो आइसक्रीम होती है, बट उसके बाहर जो होता है, जो क्रंची वाला मटेरियल होता है उस आइसक्रीम, कोन वाली आइसक्रीम में, वो से कहते हैं हम वेफर, राइट। तो वो आपने देखा ही होगा कितना पतला, और उससे वो ऐसे रहता है कि उससे भूख भी नहीं मिटेगी किसी की, राइट। तो वो उसी तरीके से उसने क्या किया, जो भी उसका मटेरियल था, रॉ मटेरियल, वहाँ उसने बहुत सारे केक बनाने के लिए रखा हुआ था, उसी में से एक छोटा सा टुकड़ा उसने लिया, उसको बेल के एकदम पतला किया, और पतला करने के बाद उसको बेक कर दिया, मतलब पकाना शुरू कर दिया। और वो इतना पतला हो गया था कि किसकी तरह दिख रहा था, वेफर की तरह। बट शी कुडंट पार्ट विद दैट। और इसके बाद भी नाउ यू कैन सी कि हाउ ग्रीडी शी वॉज, एंड हाउ मच माइजर शी वॉज, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा कंजूस और बहुत ही ज़्यादा ग्रीडी थी, बट शी कुडंट पार्ट विद दैट मतलब इतना करने के बाद भी उसको अंदर से शांति नहीं मिल रही थी कि मैं ये इतना, मतलब जो वेफर वाला पार्ट उसने बना भी लिया था, ऑलरेडी कुक भी कर लिया था, ऑलरेडी बेक भी कर लिया था, उसको भी वो नहीं देना चाह रही थी। बट शी कुडंट पार्ट विद दैट मीन्स शी वॉज नॉट रेडी even to give that part, or which was like a wafer. She was not even agreed at that time also to give that to that saint person, right? So let's proceed further, class. For she said, my cakes that seem too small when I eat of them myself are yet too large to give away, so she put them on the shelf, right. सो फॉर शी सेड, अब वो जब इतना कुछ करने के बाद, मतलब उसने पहले केक भी नहीं दिया जो बना बनाया था, उसके बाद उसने 2 बार केक बनाया, उसको भी नहीं दिया, उसके बाद उसने केक को इतना पतला कर दिया कि वो वेफ़र के फॉर्म में आ गया, और उसको भी बेक करने के बाद उसने एट लास्ट केक नहीं दिया उसको। मतलब वो बेचारा सेंट जो था वो भूखा था, उसने खाया नहीं था, पर उसके बावजूद इस लेडी ने उसको केक खाने के लिए नहीं दिया। अब वो आगे कहती क्या है, फॉर शी सेड माई केक्स दैट सीम टू स्मॉल व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ मीन्स फॉर मी। अब वो कहती है कि ये जो मेरा केक है वो मुझे तो बहुत छोटा लगता है जब मैं खुद के लिए खाती हूँ, मतलब जब मैं खुद अपना केक खाती हूँ तो मुझे बहुत छोटा लगता है, ठीक है। इसका मतलब है कि मन करता है और खाती रहूँ और ज़्यादा खाती रहूँ, ठीक है। तो कहने का मतलब ये था कि जो मेरा केक है वो मुझे खुद खाने के लिए सफिशेंट नहीं पड़ता, मतलब मुझे बहुत छोटा लगता है। आर एट टू लास्ट टू गिव अवे, पर जब देने की बात आती है या अगर मुझे
किसी को देना रहता है तो वो केक मेरे लिए बहुत भारी पड़ता है, मतलब वो देना मेरे लिए नामुमकिन सा हो जाता है। सो शी पुट देम ऑन द सेल्फ। सेल्फ मतलब रैक, वो अलमारी जो जैसे आपने देखा होगा कि मिठाई की दुकान पे काउंटर्स होते हैं, काउंटर, ठीक है, और काउंटर के अंदर देखो या किसी केक वाली दुकान में जाओ, काउंटर लगे होते हैं, काउंटर के अंदर देखो रैक बने होते हैं, मतलब सेल्फ बने होते हैं, उसी पे वो केक डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ केक को रख लेते हैं ताकि कस्टमर देखें, ठीक है। तो उसी तरह इसके पास भी एक रैक होता है और उसी पे ये केक को रख देती है। देन गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री, for he was hungry and faint, and surely such a woman was enough to provoke a saint, right? Then अब ये जो एकदम सच्चे अच्छे सेंट पीटर जो थे उनको गुस्सा आ गया, ठीक है, क्योंकि काफ़ी देर से वो वेट करा रही थी लेडी और बार बार उनको परेशान कर रही थी, और वो बेचारे तो बहुत मतलब वो पूरा दिन निकल गया था और उस दिन उन्होंने कुछ खाया भी नहीं था। सो दैट इज़ वाई ही वॉज लाइक टू वेरी हंग्री, फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट। अब वो भूखे भी थे और कमज़ोर भी पड़ गए थे। एंड श्योरली सच अ वेमेन, श्योरली सच अ वुमेन का मतलब मैंने यहाँ पे लिखा है ग्रीडी एंड माइजर। ग्रीडी मतलब लालची एंड माइजर मीन्स कंजूस, क्योंकि ऐसी एक कंजूस और लालची औरत ने उन्हें गुस्सा दिला दिया था। वॉज एनफ टू प्रोवोक अ सेंट। प्रोवोक मीन्स टू मेक एंग्री टू मेक समबडी एंग्री, राइट। तो यहाँ पे प्रोवोक कर दिया था, मतलब उस सेंट को उस लेडी ने बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला दिया था। एंड ही सेड यू आर फार टू सेल्फिश टू dwell in a human form, to have both food and shelter and fire to keep you warm, right? अब इस पे जो सेंट थे, वो सेंट पीटर थे, वो क्या कहते हैं, यू आर फार टू शेल्फिश, मतलब तुम बहुत ज़्यादा शेल्फिश हो, मतलब बहुत मतलबी हो, तुम अपना फ़ायदा हर चीज़ में देखती हो, और मेरे जैसे सेंट आदमी को जो कि भूखा है तुम उसे थोड़ा सा केक नहीं दे सकती हो खाने के लिए। टू ड्वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म, टू ड्वेल मीन्स टू लिव, ठीक है। अब वो आगे कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे जैसे इंसान को एक इंसानी रूप में रहने की ज़रूरत है, क्योंकि तुम इंसान के रूप में क्या हो, जानवर जैसे हो कि अपना ही फ़ायदा देख रहे हो, दूसरे का नहीं, ठीक है। टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर, राइट। अब वो कहते हैं कि तुम इंसान है, तुम्हें जो भगवान ने इतना कुछ दिया है, फूड दिया है, शेल्टर दिया है, देन टू एंड फायर टू कीप यू वार्म, और ये इतनी ठंड जैसी जगह में तुम्हें हर चीज़ की फायर भी दिया है जिससे कि तुम अपने आप को अच्छे से रख सकते हो, कंफर्टेबल रख सकती हो। तुम्हारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो भगवान की दी हुई हैं, पर तुम इन सब चीज़ों को क्या करती हो, इन सब चीज़ों के लायक नहीं हो। वाई? बिकॉज यू आर अनएबल टू हेल्प समबडी, एंड समबडी लाइक मी मीन्स सेंट पर्सन, राइट। सो दैट इज़ वाई ही द सेंट पीटर वॉज कर्सिंग हिम। कर्सिंग मतलब अभिशाप या श्राप दे रहे थे उसे, ठीक है। लेट प्रोसीड फर्दर क्लास। नाउ यू शैल बिल्ड as the birds do, and shall get your scanty food by boring and boring and boring all day in the hard dry wood, right? So now you shall build as the birds do. अब उसे बोलते हैं कि अब मैं तुम्हें जो भी कह रहा हूँ, तुम मुझे मतलब क्योंकि तुमने मुझे केक नहीं दिया, मुझे परेशान किया, मैं वैसे ही भूखा हूँ, अब तुम क्या करोगी, तुम भी मेरी तरह, जैसे आज मैं परेशान हो रहा हूँ वैसे तुम भी परेशान होगी, और तुम एक चिड़िया की तरह परेशान होगी और उसी की तरह काम करोगी। जैसे आपने चिड़ियों को देखा होगा कि इधर उधर भटक के वो खाना थोड़ा खाना बटोरती हैं, ठीक है, और अपने लिए नेस्ट बनाती हैं, मतलब घोंसला बनाती हैं। तो उसी तरीके से इसको श्राप मिल रहा था कि जैसे आज मैं घर खाने के लिए तुमसे मांग रहा हूँ, परेशान हो रहा हूँ, या जैसे आज तुमने मुझे परेशान किया, वैसे तुम भी एक चिड़िया बन जाओगी और एक चिड़िया की तरह तुम भी दर बदर भटकोगी और खाने के लिए भटकोगी, रहने के लिए भटकोगी, और यही सब उन्होंने सेंट पीटर ने श्राप दिया उसे। एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड, स्कैंटी मीन्स इनसफिशेंट, ठीक है, मतलब कि उन्होंने कहा कि जैसे चिड़ियों का काम होता है कि इधर उधर से खाना बटोरना, वैसे तुम्हारा भी काम अब यही रहेगा। बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग ऑल डे इन द हार्ड ड्राई
वुड। और शेल्टर के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बोरिंग का मतलब है टू मेक अ होल। जैसे आपने एक चिड़िया को देखा होगा वुड पेकर, वुड पेकर क्या करती है, वो उसके चोंच, क्योंकि बीक जो होती है उसकी वो बहुत लंबी होती है और वो हरदम क्या करती है, उस ड्राई वुड में अपने घोंसले के बनाने के लिए वो क्या करती है, उसमें छेद करती है, ठीक है। सो बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड, ठीक है। और सारा दिन एकदम तुम परेशान रहोगी और एक सूखी लकड़ी में, ठीक है, तुम्हें अपने घर ढूंढने के लिए या घर बनाने के लिए सूखी लकड़ी में क्या करना पड़ेगा, दिन भर या हमेशा तुम लगी रहोगी उसमें छेद करने के लिए, ठीक है। फिर तुम्हें खाना भी बटोरना पड़ेगा और जो तुम्हारा खाना होगा वो भी बहुत थोड़ा होगा, ठीक है। और सब तुम्हारी पूरी ज़िंदगी किसकी तरह बीतने वाली है, अब एक चिड़िया की तरह। Then up she went through the chimney, never speaking a word, and out of the top flew a woodpecker, for she was changed to a bird. Right? Then up she went through the chimney. Let me show you a picture. ठीक है, चिमनी और वुडपेकर की मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूँ। ये है वुडपेकर। अब आप देख सकते हो उसकी बीक कितनी लंबी है, ठीक है। और आप देख सकते हो कि ये क्या कर रहा है, इट इज़ हिटिंग द वुड जस्ट टू मेक द होल, right, just to make the hole for his nest, and this process is known as hitting, or making hole is making hole the process of making a hole is known as boring, right। और यहाँ एक और पिक्चर है, आप देख सकते हो कि जैसे उसने, ये मान लो उसकी शॉप है, और जैसे उसने कर्स किया, मतलब उसको बोला कि तुम चिड़िया बन जाओगी, तो वैसे ही वो चिमनी ऊपर देख सकते हो आप, जो घर के ऊपर है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, चिमनी, जहाँ से धुआं निकलता है। फैक्ट्री वैक्ट्री में आप देखते होगे, या पुराने घरों में ये ऐसा रहता था कि अंदर अगर कुछ पक रहा है या बन रहा है तो धुआं वहाँ से चिमनी से होकर के बाहर एटमॉस्फेयर में निकल जाता था। और आप देख सकते हो कि कैसे, मतलब वो ऊपर उठी, और ऊपर उठ के फिर आगे जाके क्या बन गई। आप यहाँ पे एक पैरेट देख सकते हो, बर्ड देख सकते हो, पैरेट नहीं मतलब बर्ड देख सकते हो, तो वही वो बर्ड बन गई ये लेडी, ठीक है। सो लेट प्रोसीड विद द सेम स्टांजा। देन अब शी वेंट थ्रू द चिमनी, और जैसे उसने सेंट पीटर ने ये सब उसको बोला ही था कि वो तुरंत उस चिमनी चिमनी की ओर उड़ चली, राइट। नेवर स्पीकिंग अ वर्ड, और उसने कुछ बोला भी नहीं, ठीक है, उस सेंट पीटर को। एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वुड पेकर, और बाहर से एक क्या उड़ी, वुड पेकर उड़ी। वुड पेकर मीन्स अ बर्ड, जैसे मैंने अभी पिक्चर में आपको दिखाया। फॉर शी वॉज चेंज्ड टू अ बर्ड, क्योंकि वो पूरी तरीके से एक लेडी से किस में बदल गई थी, चिड़िया में, वो भी वुड पेकर। सो लेट प्रोसीड फर्दर क्लास। She had a scarlet cap on her head, and that was left the same, but all the rest of her clothes were burned black as coal in the flame. Right? She had a scarlet cap. अब उसका जो स्कारलेट, एक स्कारलेट मीन्स डार्क रेड, तो जब वो एक लेडी, जब वो वहाँ पे लेडी एज अ लेडी काम कर रही थी, तो उसने एक कैप पहना हुआ था, और वो कैप ही बस उसके जब वो बर्ड में चेंज हुई तो वो सिर्फ कैप ही बच गई थी, वो भी उसी के साइज़, उसी के हेड के साइज़ की आ गई थी। मतलब उसका जो हेड था वो वहाँ पे कैप तो नहीं थी, पर उसका जो हेड था, जो बर्ड, जब वो लेडी बर्ड बन गई थी, तो बर्ड बनने के बाद उसका जो बर्ड का हेड था, जो वुड पेकर का हेड था, वो एकदम डार्क रेड हो गया था, ठीक है। शी हैड अ स्कारलेट कैप ऑन हर हेड, एंड दैट वॉज लेफ्ट द सेम, और सिर्फ इतना ही बचा हुआ था, बाकी सब उसका जितना भी क्लोथ्स था, जो भी उसने पहना हुआ था जब वो लेडी थी तब तक, वो पूरा बर्ड बनने के बाद पूरा क्या हो गया था, जल गया था, किसकी तरह, एक कोयले की तरह फ्लेम में। बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स वर बर्न्ड ब्लैक एज कोल इन द फ्लेम, मतलब उस मतलब जो कर्स उसको किया था, जो उसने श्राप दिया था, उसी में वो उसी जैसे उसी मतलब उसी श्राप के आग में वो उसका कपड़ा उपड़ा सारा जल गया था। सिर्फ एक रेड कलर की कैप जो कि उस वुड पेकर के शरीर पे बच गई थी, मतलब उस लेडी के शरीर में बच गई थी, जब वो किस में बदल गई थी, उस वुड पेकर में चेंज हो गई थी। And every country schoolboy has seen her in the wood, where she lives in the trees till this very day, boring and boring for food, right? And every country schoolboy, country means provinces और rural areas, ठीक है। तो यहाँ पे country का मतलब है जो, क्योंकि ये गांव की बातें हैं या छोटे एक provinces की बातें हैं, जो आसपास या गांव एरिया की बातें हैं, ठीक है। तो वहाँ के जो स्कूल टाइम, मतलब जो वहाँ के उस टाइम के स्कूल के बच्चे थे, ठीक है, जो जब ये कहानी हुई, जब ये मतलब ये चीज़ें हुई उस सेंट पीटर और
और उस लेडी के बीच में। तो उस टाइम पे जो स्कूल के बच्चे थे उस एरिया में, उन्होंने उसको देखा था कहाँ पे, वुड में, ठीक है। मतलब उन स्कूल के बच्चों ने इस वुडपेकर को, या आप ये कह लो कि इस लेडी को देखा था कहाँ पे, जंगलों में पेड़ों पे, ठीक है, या लकड़ियों के बीच में। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज़ सीन हर इन द वुड वेर शी लिव्स इन द ट्रीज, जहाँ पे वो पेड़ों में रहती थी, टिल दिस वेरी डे मीन्स करंट डे और करंट टाइम, मतलब अभी भी कहानी बहुत पहले की है, बट अभी भी और पहले भी लोग आज भी इस लेडी को वहाँ पे चिड़िया बने हुए, मतलब ये वुडपेकर बने हुए और वहाँ पे रहते हुए, पेड़ों में या वुड में रहते हुए उसको लोगों ने आज भी देखा है। बोरिंग फॉर फूड, और आज भी वो क्या करती है, शी इज स्टिल सर्चिंग फॉर अ फूड, राइट। शी इज स्टिल स्ट्रगलिंग और जगलिंग फॉर कलेक्टिंग हिज इट्स फूड on daily basis, right? So let's proceed further, class. So homework, students, you all have to write down the word meanings in your classwork copy, and in the book too also write down the question and answer of this lesson in your classwork copy, right? So what you have to do is you have to write down the meanings as I have written in my book. You also have to write down the same thing, or you have to also do the same thing in your book. Then you have to write down the word with meanings in your classwork copy along with the question answer in your classwork copy that is given in the guidebook in English class, English class 9th guidebook, right? So you have to write down all the things as your homework. So students, in our next class we will continue with lesson 5, the kingdom of foods, right, in movements, which is a part of a movement. This lesson is a part of a movement. We will continue in our next class. Till then, take care and stay safe. Thank you, class.